Welcome back to the studio. We are on to the 5th day of CPL 2016 T20 tournament, and today the second match which is going to be played is between the AT Solitaires Durg and Royal Panther Bhilai. I want to tell to the audience that already AT has played 3 matches. They have lost 2 and won 1 match, whereas Royal Panther played 2 matches. They registered 1 win and 1 loss. Bhaskar, it's a crucial match for AT. Thank you, Vaswati. Yeah, it's definitely a very crucial match for AT Solitaires. They have to pull their socks up now, because if they lose today, I think they are probably out of this tournament. So it is a very crucial match, and they have to really give a hard thinking towards the composition of their team. In my opinion, they need to do some major changes in their team, and they have to really strengthen their bowling attack. And hopefully their team management and coach and captain will do a thinking about that. And I foresee that they will strengthen their bowling. As far as batting is concerned, they are okay, but bowling they need to do something. Okay, and hello Maru. Hi. I just want to ask you how the play of Royal Panther is going on in this tournament. Well, they've done well. They lost a stinker of a game to Swarnabhumi, which went into the super overs. No one to blame. They came back well. They won their next match. Now they're here. One word of caution. Given the wicket conditions, Shabilal Jal Chhatri could be on fire. नमस्कार, गुड इवनिंग भिलाई, गुड इवनिंग छत्तीसगढ़। यंगिस्तान के द्वारा आयोजित T20 छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में आज सेक्टर 1 स्टेडियम से मैं राजेश सिंह बिसेन अपने पिच विशेषज्ञ के साथी मोहनदास के साथ आपको इस विकेट के बारे में जानकारी दूंगा। आज इस टूर्नामेंट का 5वां दिन है और दूसरा मैच खेला जाने वाला है, और शानदार इस टूर्नामेंट का 10वां मैच जिस पिच पे खेला जाएगा, आइए मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। जैसा कि आप इस पिच को देख रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से रोल किया गया है। इसमें घास भी नजर आती है, जगह जगह आपको दरारें भी नजर आती हैं जैसी, लेकिन पास से हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये हरी हरी घास दिख रही है। ये विकेट ठोस है, ड्राई है और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। Good evening, ladies and gentlemen, and here we are again with the day's second match to be held between AT Solitaires Durg and Royal Panthers Bhilai. I have with me both the team captains, Mr. Nitish Rao and Mr. Prakhar Roy, and the match referee, Mr. Gopal Rao. He is the ex-Ranchi player. All right, so here we had both the team captains. Now moving forward to the toss, I request Mr. Gopal Rao to further proceed for the toss. So here we had the winner of the toss, and that is AT Solitaires Durg, Mr. Nitish Rao. Congratulations, Nitish. Thank you. So what are you going to opt for? हम bowling करना चाहेंगे। 2016 sensational Sunday. Second, Mr. Gopal Rao, the match referee. बहुत ही अच्छा शॉट ऋषभ के बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रनों के लिए बेहतरीन शुरुआत ऋषभ के। खचाखच पहले विकेट का पतन यहां पर
रॉयल पैंथर्स का पहला विकेट गिरा। ओवर पिच बॉल थी, इसे कट कर दिया थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, कस के शॉट मारा है इसे ऑफ साइड में, 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। सुधाकर छवि को जब भी लूज बॉल्स मिलती है तो कोई मौका नहीं चूकते और सीधा सीमा। वैसे भी छवि एक हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें जैसे ही लूज बॉल मिलती है उनकी तो आंखें चमकने लगती है और वे उस पर कड़क प्रहार करते हैं और कोशिश करते हैं। 4 रन, परफेक्ट T20 शॉट, इसे हुक करना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले के बाहर, गेंद काफी तेज थी और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन। इस बार खेला इसे 4 रनों के लिए, गेंद जारी बाउंड्री लाइन से बाहर, बेहतरीन शॉट और इस बार सफल हुए प्रखर। This is another Raipur power maximum, and this time it is over the point fence. Great shot this, Mohan. Yeah, a very difficult shot to play. And Prakhar Roy played a brilliant shot. Flighted delivery. He wanted to cut the ball and he edged it and passed short third man for a boundary. Average. Oh yes, a good See, start. the boy wanted to cut it and an edge, and the short third man fielder couldn't stop it. Power play now. I don't think it's going to make a difference. The ball goes to the third man fence for another boundary. The positive intent from Bhilai Panthers is very evident in today's match. What a brilliant catch! What a brilliant catch! Oh, what a brilliant catch! Such catches win matches, isn't it, Maru? And these catches come once in a match or even once in 3 matches. A direct hit often results in a run out. It has been referred. I think the captain came, Vikrant Singh Rajput, effecting a direct hit. He's always a uncanny. Chala gaya. Ball dispatched to his dugout. Go and fetch. In T20 format, it was a length ball. Chabilal Jalchatri has gone to 21 of 16 balls. And he has scored 3 fours at this point of time. It happens in a T20 game. For that matter, in every format of game. At that particular time, Royal Panthers couldn't afford to lose a wicket. What a shot. Short ball from Nitish Rao. Behind point, 4 runs.
रनों में। बहुत ही कड़क प्रहार, और ये है रायपुर पावर मैक्सिमम। सेंसेशनल शॉट ऑन सेंसेशनल संडे, CPL 2016। आखिरी बार आते हुए विक्रमजीत, और इस गेंद को खेलने की कोशिश की और इस तरह से आउट। बहुत अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने, आउटरेज लगा। जोरदार प्रहार करना चाहते थे, बल्ला बॉल के लाइन में नहीं ला पाए। स्कोरिंग टीम एवं टेक्निकल टीम को देख सकते हैं, और इस बीच इसको खेल दिया है डीप। और लास्ट के कुछ ओवरों में जोरदार प्रहार कर इस बीच सौरभ केरवार ये गेंद को मारा है और कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए, और इस बार वे अपने प्रयास में सफल होते हुए शानदार चौका, डीप कवर्स बाउंड्री की तरफ 4 रन सिंह को, और उसे उठाकर मार दिया। देखना है वहां पे कैच हो सकता है कि नहीं, लेकिन आसान सा कैच लपका वहां पे खड़े फील्डर ने, और एक और विकेट का पतन। इस समय 5वां झटका लगा रॉयल पैंथर्स भिलाई को। 8.2 ओवर इस समय हो चुके हैं, और फिर से उठा के मार दिया लॉन्ग ऑफ दिशा की तरफ। 6 रन के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट, और ऐसे शॉट की इस समय उनकी टीम को बहुत सख्त जरूरत। पहली गेंद उसे कवर्स की दिशा में उठाकर मार दिया। गेंद काफी देर तक हवा में है और बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आने की देरी, और 6 रन। शानदार शॉट, उनकी टीम को जरूरत, और ठीक उसी के अनुरूप खेलते हुए बल्लेबाज। तो ये था रायपुर पावर मैक्सिमम। गेंदे आने शेष, और इसे फ्लिक करना चाहते थे, इस बार बीट हुए, सफल नहीं हो सके, और गेंद सीधे स्टंप्स में टकराई और आउट होकर। सही बात। फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। घूम कर मारना चाहते थे, वहां पे दौड़कर 1 रन पूरा किया, तब ओवर थ्रो हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ गए हैं, और एक और बार तीसरे रन के लिए दौड़ गए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और 14 रन दौड़ने का प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार वे सफल नहीं हो पाएंगे। वाइट का इशारा अंपायर का।
वेलकम बैक। One of the senior most coaches in Chhattisgarh has thrown us further surprise. और अभिषेक ताम्रकार आउट होकर डग आउट वापस जाते हुए। पिंच हिटर के रूप में भेजा था अभिषेक को। एक अपील हुई और आउट। अंपायर का इशारा, बेहतरीन गेंद। अच्छा शॉट सोनी के बल्ले से, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक सोनी के बल्ले से। वैसे बहुत बेहतरीन शॉट, कवच की दिशा में खेल दिया है। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। जैसे ही उन्होंने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच बॉल थी, बैकफुट पे आया, सीधा खेल लिया कवच। मंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी और 80 सॉलिटेयर्स के ओनर इस मैच का आनंद उठाते हुए। और बोल्ड हो गए, कट मारने का प्रयास किया था, खड़े खड़े अपनी जगह पर खेलने का प्रयास किया था। गेंद उनके बल्ले में ठीक से नहीं आई, अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स में। इस बार बहुत अच्छा शॉट, 4 रनों के लिए गेंद कवर्स के बाहर। 24 रन का स्कोर इस वक्त। और इस बार फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। जैसे ही उन्होंने देखा लेग स्टंप के समाप्ति के पश्चात 29 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। प्रखर तैयार हॉस्पिटल छोर से ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसको कट कर दिया है 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। जैसे ही उन्होंने देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। What a shot! And this is रायपुर पावर मैक्सिमम। काफी समय बाद एक करारा प्रहार देखने को मिला 80 सॉलिटेयर्स की बैट। रायपुर पावर मैक्सिमम 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12वां ओवर चलता हुआ। और इस बार विकेट कीपर भी गेंद को गैदर नहीं कर पाए। इन 4 रनों के साथ स्कोर 68 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सुधाकर जिस गेंद में अपील हुई थी कॉट बिहाइंड की, वो गेंद बल्ले से काफी दूर थी। और फिर से उठाकर मारा है रायपुर पावर मैक्सिमम। 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। शानदार शॉट। सुधाकर, मैं आपको बार बार बोल रहा था, बहुत अच्छा शॉट। यह है एक रायपुर पावर मैक्सिमम स्क्वायर लेग। और इस बार फिर से स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, किंतु इस बार फील्डर ने गेंद को लपक लिया। गेंद हवा में थी और वहां पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने के लिए। चौथा विकेट गिरा है। तीसरे विकेट के भी
और ये आसान सा कैच ऑफ स्टंप के बाहर थी, उछाल कर मार दिया है। वहां पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की है। इस प्रकार 5वां विकेट गिरा। उसे घूमकर मार दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर खड़े फील्डर यहां से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। 4 फिर से उसी दिशा में खेल दिया है। गेंद काफी देर तक हवा में थी लेकिन कोई फील्डर नहीं। वहां दूसरा रन दौड़ पड़े हैं, देखना है। और रन आउट की अपील देखना है। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है और वे बराबर खतरा मोल लेते हुए रन बनाने ही होंगे सुधाकर। 16 रन से ज्यादा और उन्हें आउट करार दिया गया है। काफी तेजी से दूसरा रन दौड़े थे लेकिन क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और इस प्रकार आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए। शानदार शॉट 6 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। जैसे ही उन्होंने देखा प्रखर की गेंद शॉर्ट पिच थी, फिर से प्रहार किया उस दिशा में। 6 रन के लिए लगातार 2 रायपुर पावर मैक्सिमम। मैंने आपसे कहा था सुधाकर, बहुत अच्छा स्ट्रोक किंतु फील्ड कर लिया गया। इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। थर्ड अंपायर को डिसीजन रेफर किया गया है रन आउट के लिए और एक निर्णय आता हुआ आउट। सातवां विकेट गिरता हुआ 80 सुधाकर। अपील कस के और विकेट के ठीक सामने थे बल्लेबाज। अंपायर ने कोई गलती नहीं की, आउट करार दिया उन्हें। आज बोल्ड हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर से गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि होंगे और ये पहला छक्का। क्या बात है, शुरुआत हो गई है शायद। क्या बात है, बेहतरीन। रायपुर पावर मैक्सिमम पूरा प्रयास करते हुए एटी सॉलिटेयर दुर्ग के बल्लेबाज, जबकि एक विकेट शेष है। पहला गेंद तो रायपुर पावर मैक्सिमम ले लिया, अब देखना है दूसरी गेंद पर। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त 1 रन 126 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शायद गेम अभी भी अलाइव। अगली गेंद 1 रन ही मिलेगा। And they lost this match by 21 runs. Earlier, AT Solitaires Durg actually won the toss and elected to field, and were chasing 154 for 7 of Royal Panthers. In this way, finally, they lost the match by 21 runs. What our expert want to comment on this? Bhashpati, at this point of time, I can only say one thing, that the planning of AT Solitaires did not work today. It worked when they bowled. They failed to execute their plan when they were batting. Having said that, the result of this match clearly indicates one thing, that there would not be any change in the table as far as the tournament is concerned. But they took their chances with respect to their plan,
They sent in Abhishek Tamrakar as a pinch hitter in the opening slot. It didn't come off, fine. They lost another couple of wickets and they actually did not recover from there. Having put in a side to bat and having restricted the side to a decent total, 155 is an average score considering the wicket conditions, and then not chasing them fruitfully. I would say it's a bad day in office for them. They did not execute their plan in the manner which they planned it. What do you say? Yeah, what I felt was the partnership which was building between Ian Foster. We'll be coming with the discussion once again. At present, let us move towards the presentation. Viewers, welcome to this presentation ceremony. As we have already witnessed the match between Royal Panthers and AT Solitaires Durug. We all know that today Royal Panthers batting first put on a score of 154 for the loss of 8 wickets, and AT Solitaires in their reply were bundled out for 133. We are honored to have amongst us Mr. Saurabh Baradia from Anupchand Tilokchand and owner of AT Solitaires. For Royal Challengers KDA Groups, Mr. Shyam Murthy. From Raipur Power, Mr. P. Singh. Mr. Ghoshal from MATS University. Vishnu Pathak ji, Vice Convener, Yangistan, and Mr. Anup Tiwari, Vice Convener, Yangistan. Welcome, sir. Let me call upon first the captain of the losing team, Mr. Nitish Rao. Please come this side. नीतीश, टॉस जीतकर बॉलिंग करना क्या भारी पड़ गया? नहीं, हमने पहले प्लान करके रखा था. एक्चुअली हमारी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पा रही है टोटल. हमने जितना भी प्रैक्टिस मैच खेला है तो हम एक चांस ले रहे थे कि हम अपने बैट्समैन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और मुझे लगा कि 150 स्कोर हमने अच्छे टारगेट में रोका था तो हम चेस कर सकते थे. परंतु आपने जो इससे पहला वाला मैच जो इसी विकेट में खेला गया, या 2 दिन से जो धीरे धीरे विकेट का नेचर चेंज हो रहा है, इसको मद्देनजर रख के अपना प्लान किया था कि प्री प्लान था बिना विकेट को रीड किए? हमने वैसे लास्ट मैच के बाद डिसाइड किया था कि हम चेस करेंगे, और ऐसा नहीं कि हमने मतलब ग्राउंड आके विकेट ना देखा. तो जैसे अभी नया रूल है, जैसे स्पाइक्स पहन के आपको बैटिंग नहीं करना है, जिससे विकेट काफ़ी बाइंड थी. मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा 4th इनिंग में बैटिंग करना, और हालांकि उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. हमने जल्दी विकेट लॉस किया जिसके कारण रन रेट थोड़ा पीछे रह गया और कुछ अपॉर्चुनिटी हमने मिस की. आप इस टूर्नामेंट में अब ये लॉस के बाद अपने को कहाँ पाते हैं और आप यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? हमने होप नहीं छोड़ी है. अभी एक मैच बाकी है, काफ़ी उसमें हम जीतेंगे तो काफ़ी हद तक हम एलिमिनेटर में रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो हमारा ध्यान अब फोकस है कि ये लास्ट मैच हम कैसे अच्छी क्रिकेट खेले, ना कि रिजल्ट में ध्यान दे. कोशिश करेंगे हम अच्छा क्रिकेट दे और होप लास्ट मैच जीते. All the best, Nitish, for your next outing. Now let me call upon Prakhar Roy from Royal Challengers. बधाई हो प्रखर. क्या ईमानदारी से बताइएगा, क्या टॉस जीतने से आप बैटिंग ही पहले करते कि आप चेस करते? नहीं, हम लोग का प्लान था कि हम बैटिंग पहले करेंगे और दूसरी टीम को प्रेशर में डालेंगे. तो यह आपके लिए बून इन डिस्गाइज हो गया कि उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग ले लिया? जी हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं. मैं आज बहुत दिनों बाद इस ग्राउंड में कुछ अच्छा मीडियम पेस बॉलिंग देखा. आप खुद ग्राउंड के बीच में थे. आपको विश्वरंजन त्रिपाठी और सौरभ खैरवार का बॉलिंग कैसा लगा? अच्छा, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे वो लोग. काफ़ी एफर्ट से बॉलिंग किया उनने. अच्छा कैरी हो रहा था बॉल, और विकेट बाकी दिन से ज़्यादा अच्छा था. बाइंडिंग काफ़ी थी तो विकेट अच्छा कैरी हो रहा था बॉल. तो उसमें उन लोगों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बट 1-2 लूज बॉल्स में ही उन लोग रन दिए. बाकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उनने.
आपका पोजीशन अभी धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है। आप इसके बाद का जो मैच है और उसके आगे टूर्नामेंट को किस तरह से अप्रोच करना पसंद करेंगे? सर हम लोग नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रह के, और हम कोशिश कर रहे हैं, टीम हमारी काफ़ी अच्छी, कैंप में हमारे काफ़ी अच्छा माहौल है, तो हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं आगे के लिए, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हर मैच अच्छा खेल के जीतें। आपको फिर से बधाई हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट आउटिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 प्राइजेस हमारे यहाँ दिए जाता है। एक है रायपुर पावर सुपर सिक्सेस, और आज बहुत से छक्के पड़े। रॉयल चैलेंजर्स के तरफ से प्रखर, शिवेंद्र और शाकिब, जावेद सब ने 1-1 छक्का जड़ा, और 80 सॉलिटियर्स के तरफ से विक्रांत, यान कॉस्टर और अनीस ने 2-2 छक्के जड़े, पर सबसे लंबा छक्का इयन कॉस्टर का जाता है। तो रायपुर पावर सुपर सिक्सेस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इयन कॉस्टर को। इयन, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बीच में ऐसा लग रहा था कि आप मैच को थ्रू कर देंगे। आपको कैसा लगा आज इस विकेट में बैटिंग करने? क्योंकि इस विकेट का नेचर आज थोड़ा सा अलग था, बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, बाउंस भी ले रहा था। आपको क्या लगा, ये दूसरे दिनों से अलग विकेट था? जी हाँ, ये बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था। जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इनिंग में अभी बॉलिंग किए थे, तो ऐसे लग रहा था ट्रू विकेट था, बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा था। हम लोग कोशिश तो किए, बट हमारी ओपनिंग स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी, प्लस मिडिल में जैसे मैं और विक्रांत भी अच्छा स्टार्ट पार्टनरशिप कर दिए, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग थोड़ा सा उधर लैक कर लिए थे, और बीच में हम लोग को थोड़ा सा तेज भी खेलने का करना था, जिससे रन रेट हमारा कम हुआ। उसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो ये एक बात बताइए, जब आप बिग शॉट खेलने जाते हैं तो आप बॉलर को चूज करते हैं, बॉल को चूज करते हैं, या प्री डिटरमाइंड खेलते हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं है। जो मेरे रेंज में रहता है मैं उसी शॉट को उसमें मारता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल अपना जो क्रिकेट है बेसिक्स में चले जाता हूँ, सिंगल्स में, नहीं तो जो मेरे रेंज में है उसी को मैं मारता हूँ। बधाई हो, ऑल द बेस्ट। अगला प्राइज जो है वो CSIT मैन ऑफ द मैच, और उसके हकदार है आज तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए और साथ में जिन्होंने 4 विकेट भी झटका, मैं बुलाना चाहूंगा शाकिब को। इन्होंने 16 बॉल में 18 रन बनाए थे और बेहतरीन 4 विकेटें 15 रन देकर उन्होंने लिया था। शाकिब, ऐसा विकेट बहुत कम मिलता है, कैसा लगा बॉलिंग करके? ना, इंडिया में तो काफी कम मिलता है ये, तो काफी अच्छा लगा। मोरोवर उनके बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके मीडियम पेसर्स भी अपना बैक बेंड कर रहे थे, काफी अच्छा। हमको भी स्टार्टिंग में सोचना पड़ रहा था कि आप कैसे रन बनेगा। अब मेरे ख्याल से एज अ मीडियम पेसर अब आपको जोश आ गया होगा। क्या हम फ्यूचर में ऐसी स्पेल्स आपसे यहाँ एक्सपेक्ट करें इस विकेटों में? जी बिल्कुल। वैसे विकेट जैसा भी हो, मीडियम पेसर को तो बॉल डालना ही है, तो मैं अपनी टीम के लिए मैच जिता पाया, ये अच्छा है। बधाई हो, ऑल द बेस्ट, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन असेंबली। थैंक यू एवरीबॉडी।